Hi, my dear friends. Welcome to all of you in my channel Urge Classes. My dear friends, I Ajay Kumar Misra. Welcome to all of you once again in Urge Classes. My dear friends, for benefit to all of you in lockdown session, just our team is making different types of videos especially related to science subject. Now chemistry is going on, biology is going on, and recently just in very near future I will provide you in physics also. My dear students, if you are interested, if you like our video, I request all of you never forget to subscribe my channel and spread about my channel in all groups so that maximum number of the students can get benefit and they can subscribe it so that they can receive message directly when I start my live. Now today chemical reaction and equation part 2, just I am going to explain you chemical reactions and equation. Previously I have already explained you about the introduction, definition of chemical reaction, how will you write the chemical equation, what is the reactant, what is the product, how will you balance the chemical equation. Now today I will start the types of chemical reaction. Types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Previously, I have already told you there are two types of chemical equations. Only there are two types of chemical equations. First, a skeleton equation, and second one is balanced chemical equation. But in types of chemical reactions, there are so many types of chemical reactions. But according to of your standard, whatever it has been mentioned, just I am going to explain. First, types of chemical reaction. Combination reaction. Combination reaction. What is the combination reactions? My dear friends, combination reaction, it explains itself combination, and you know very well what is the reactions. Two or more substances get together, react to each other and form a new substance, that is called chemical reaction. Here this one word it has been already mentioned. Combination, it means what? Combined. When two or more reactants or chemical substances combined and form a single product, that is called combination reaction. When two or more chemical
substances combine and form a single product called combination reaction. Two or more chemical substances combine and form a single product, that is called combination reaction. Now we can take an example. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स या केमिकल सबस्टांसेस आपस में कंबाइन करेगा और कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सिर्फ अभी आप इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारा कंफ्यूजन आएगा, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएगी, बट वन थिंग इज मोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम टेलिंग यू। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आई विल गिव यू अ लॉट। स्टार्टिंग में जो देख रहा हूं मैं उसे आपको समझ लेना है, उस पर कमांड करना है, और तब आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बढ़ते चला जाऊंगा इसकी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी जो होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, डेप्थ जो होगा बढ़ते जाएगा, और मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप देते जाऊंगा। देन यू हैव ए पेशेंस। फर्स्ट एग्जांपल C plus O2, C plus O2 example, C plus O2, it gives CO2. This is the carbon, it is in solid form, oxygen this is in gaseous form, or CO2 carbon dioxide this is a gaseous form. Now carbon burns in presence of oxygen, then it gives carbon dioxide. Here this is the reactant and this is product. So in reactant side there are two elements, carbon and oxygen. It is in elementary form, carbon, and oxygen it is in the gaseous form. Two substances combines and form a single product, that is carbon dioxide. So in this way we can say that this is the combination reaction. Now second example you can see, CO plus O2. Now it forms CO2. Now you have to balance it. Now if I take 2 CO, 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, अगर 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखिए दोनों तरफ बराबर है, बैलेंस्ड है। नाउ 2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है किसे? जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C plus O2 CO2 and CO plus O2 CO2 CO2? Here just I am making different steps in combination reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये पहला स्टेप्स है, ये पहला टाइप्स होगा। इसमें आप केवल एलिमेंट्स कंबाइन कर रहा है और वो एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन जब आप इस एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल सेकंड में बेटा मेरा, एग्जांपल सेकंड,
एग्जाम्पल सेकंड में आपने देखा एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है। दूसरा का ऑक्सीजन गैस, ये भी एक मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये इसके साथ मिला तो दोनों मिलकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहां पर दोनों एलिमेंट था, यहां पर एक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक गैस है जो कंपाउंड के फॉर्म में है और दूसरा एलिमेंट्री फॉर्म में है। तो यहां पे आपका दोनों एलिमेंट था, एलिमेंट प्लस एलिमेंट था, और यहां पर एक कंपाउंड प्लस एलिमेंट है। और थर्ड एग्जांपल आप मैं जो देने जा रहा हूं वो दोनों क्या है, दोनों कंपाउंड्स होगा और दो कंपाउंड्स कंबाइंड करके सिंगल प्रोडक्ट देगा। तो ये तीसरा टाइप है एग्जांपल का। एग्जांपल थर्ड, इसमें CaO, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये रिएक्शन किसका, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन, क्विकलाइन। और क्विकलाइन जब किसके साथ रिएक्शन करेगा ये, तो वाटर के साथ करेगा, H2O, दैट इज इन ए लिक्विड फॉर्म and it is in solid form. Now when they combines to each other and it will give a single product. Now that is CaOH whole 2. Now calcium hydroxide. Calcium hydroxide, that is known as slacked line. SLAKED, slacked line. Slacked line. Now these are the examples of combination reaction. So in combination reaction you have already remembered when two or more substances or reactants combined. So here which types of elements and elements can combine, element and compound can be combined, and compound and compounds can be combined and form a single product, that is called combination reaction. So these are all combination reaction. My dear students, combination reactions are always exothermic reaction. Combination reactions are always exothermic reaction, but not all combination reaction will be exothermic reaction. सारा combination reaction exothermic reaction नहीं हो सकता, but generally सारा exothermic reaction combination reaction नहीं हो सकता है, लेकिन करीब करीब 80 to 90% combination reaction जो होगा वो क्या होगा, आपका exothermic reaction होगा. Now you can see here. Second, इसी reactions को combination reaction से ही related होता है मेरा exothermic reaction. So try to understand about the exothermic reaction. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, हर आदमी के अंदर पूरी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, बस इरादा उसकी यूटिलाइजेशन की है कि वो कितना यूटिलाइज कर रहा है। तो लोग कुछ कह गए हैं, क्या कहे जानते हैं, कि गर्मी तो न ऊन में होती है और न जून में होती है, गर्मी न ऊन में होती है और न जून में होती है, गर्मी तो सिर्फ जोश और जुनून में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर जोश और जुनून है तो यू कांट डिफीट, नो वन कैन डिफीट यू, you can achieve your goal, you can
डिफीट एनीवन। तो अगर आप में पढ़ने की अगर लगन हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड नाउ वी आर रेडी टू सपोर्ट इन ईच एंड एवरी स्टेप्स। आज क्लासेस के हर टीचर, हर फैकल्टी आपको उस मुकाम तक पहुंचाने का दावा करता है जहां आप चाहते हैं। तो बस सिर्फ और सिर्फ अर्ज क्लासेस का YouTube चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आपको हर दिन नया मिलते रहेगा। तो नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक मिनट रुक जाना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले आपको मैं बता चुका हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नाउ इट इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चूंकि कोई भी चीज कंबाइंड करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी उसमें सप्लाई करना पड़ता है, डिकम्पोज करना पड़ता है, तोड़ते हैं और देना पड़ता है, वो एनर्जी गेन करता है। दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगा। सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन करीब करीब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नाउ यू कैन सी हियर C+O2, ये S का मतलब सॉलिड होता है, O2 ये गैसियस है। ये जब बर्न करेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस 94.4 किलो कैलोरी हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या करता है? प्लस साइन किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर है तो वो बता रहा, प्रोडक्ट साइड में अगर है तो बताता है कि एनर्जी रिलीज कर रहा, और जो एनर्जी रिलीज करता है केमिकल रिएक्शन में दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो यू कैन राइट हियर द डेफिनेशन in which chemical reaction heat energy is evolved, that chemical reaction is called exothermic reaction. Now example above equation. देखिए ऊपर का केमिकल रिएक्शन जो है C+O2 दिया क्या? CO2, ये दो एलिमेंट्स कंबाइंड किया और दिया सिंगल प्रोडक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट हियर इट इज रिलीजिंग 94.4 किलो कैलोरी, 94.4 किलो कैलोरी। इट मीन्स दिस इज ए हीट एनर्जी, दिस इज ए हीट एनर्जी रिलीजिंग, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, क्या पॉइंट ये थी कि ये दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑलवेज हीट एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता है। सारा कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक हो सकता है, लेकिन सारा एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। देखिए एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूँ। बुढ़वा का रोपण जी था, कराएगा पूरा कर देना। रोको उसको, बैठा 2 मिनट रोको उसको, होने जाओ बेटा, बैठा नाउ one example I am taking respiration reaction. रेस्पिरेशन में क्या होता है? व्हाट इज द रेस्पिरेशन रिएक्शन? हम लोग खाना खाते हैं, खाना में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नाउ C12H22O11, दिस इज कार्बोहाइड्रेट।
ये कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, C6H12O6। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको हम रोटी चावल के रूप में कहते हैं। आफ्टर दैट वी रेस्पायर ऑक्सीजन गैस। चूंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, अलाइव होने के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकता। नाउ तो रेस्पायरेशन में चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो ऑक्सीजन गैस लेता है। तो हम भी लोग, सारा भी लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो हमने खाना खाया, स्टमक में जाकर के ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन गैस जो रेस्पायरेशन के थ्रू गया वो कंबाइंड किया, रिएक्ट किया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये भी यहाँ कंबाइंड कर रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। वहां क्या था कि सिंगल प्रोडक्ट देगा तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट नहीं देके दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। वो मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है, बट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू कांट से दैट इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक ये रिएक्शंस किया, अब यहां पर ये क्या बनेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, आपका वाटर रिलीज करेगा, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता। देखिए प्लस किया, एनर्जी रिलीज किया, इट मींस ये दो प्रोडक्ट दे रहा है, आपका सिंगल प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए मैंने बोला कि ऑल एक्सोथर्मिक कांट बी कॉम्बिनेशन, बट मोस्टली 80 to 90% कॉम्बिनेशन रिएक्शंस फॉलो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए दोनों को हम लोग कोरिलेट करते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ carbohydrate. Now this is oxygen gas and कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन में, इनहेलिएशन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और एक्सेल में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नाउ दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और यूरिनेशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू वाटर का होता है, रिलीज करता है सॉल्ट फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, मेरा वाटर हो गया। और नाउ एनर्जी बना जो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी के हर सेल्स को मिलता है, सो दैट वी कैन डू वर्क। नाउ यू हैव टू बैलेंस इट, C6H12O6 plus 6O2 plus 6CO2 plus 6H2. Now it has been balanced, and now it shows the exothermic reaction. This is the example of exothermic reactions. So now today we have finished combination reaction, and this is the correlated to exothermic reaction. So just I have already explained combination reaction as well as exothermic reaction. My dear students, if you like my video, never forget to subscribe and share to all groups. Now in next class I will teach you decomposition reaction. Thank you.